آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے خلیل یعنی اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا معجزاتی واقعہ بتائیں گے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بند غار میں اللہ کی رحمت سے پرورش پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر بابل کے ایک نواحی قصبے میں ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی تو بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہت تھی۔ نمرود ایک ظالم و جابر اور طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو بابل کا خدا کہلواتا۔ روایتوں میں ہے کہ نمرود ہی نے سب سے پہلے سر پر تاج پہننے کی شروعات کی۔ وہ رعایا سے اپنی طاقت کے زور پر اپنی پرستش کرواتا۔ شہر بابل کے لوگ نہ صرف نمرود کو اپنا خدا مانتے بلکہ سورج، چاند، ستاروں اور اس کے ساتھ ساتھ لکڑی، پتھر اور دھاتوں سے بنے مختلف بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ نمرود کے دربار میں کاہن اور نجومی کثرت سے موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر اور والدہ کا نام املہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت شیش علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ابن کثیر سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مابعوث فرمانے کا ارادہ کیا، اس وقت نمرود کی حکومت تھی اور ہر طرف کفر و شرک عام تھا۔ ایک روز نمرود نے خواب دیکھا کہ شہر بابل کے جنوب سے ایک بہت بڑا روشن ستارہ نکلا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ چاند اور سورج کو بھی ماند کر دے، اور پھر وہ ستارہ رفتہ رفتہ آسمان پر چمکنے لگا۔ صبح ہوتے ہی نمرود نے اپنے تمام نجومیوں کو بلایا اور اس بات کو بیان کیا۔ سب سے بڑے نجومی نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت تباہ و برباد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں سب ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا دین آنے والا ہے۔ ہمارے علم کے مطابق اس بستی میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو پاش پاش کر دے گا، اور وہ اسی سال پیدا ہونے والا ہے۔ نجومیوں کی بات سن کر نمرود بہت پریشان ہوا۔ نمرود نے حکم دیا کہ جو بھی بچہ اس سال پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دیا جائے اور تمام حاملہ عورتوں کو پکڑ دیا جائے، اور لڑکی پیدا ہونے پر چھوڑ دے اور لڑکا پیدا ہونے پر اسے مار دیا جائے۔ چنانچہ تمام حاملہ عورتوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ البتہ آزر کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو گرفتار نہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حمل کو نمایاں نہ ہونے دیا، لہٰذا اس سال لاکھوں بچے قتل کیے گئے۔ یہ سب کر کے نمرود خوش تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا، مگر نمرود نہیں جانتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو حکم دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اسی طرح 9 ماہ تک اللہ کے حکم سے ان کا حمل پوشیدہ رہا، اور جب آپ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا اور درد ذیل شروع ہوا تو آپ کی والدہ محترمہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے مکان سے نکل پڑیں اور سیدھے پہاڑوں کے بیچ پہنچی، اور وہاں ایک نہایت پوشیدہ غار تلاش کر کے اس میں داخل ہو گئی، جہاں پہنچتے ہی آپ کے شکم مبارک سے ایک نور برآمد ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جناب جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہو گئے، اور سارا غار ان کے نور سے روشن ہو گیا۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے اپنے نوزائیدہ فرزند کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہاں لٹا دیا اور خود مارے خوف کے وہاں سے باہر آئیں، اور غار کے منہ کو پتھروں سے بند کر کے گھر لوٹ آئیں، اور اپنے شوہر آزر سے آ کر سارا ماجرا بتایا اور ایک فرزند کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ جب دوسرے دن غار میں پہنچیں تو اپنے بچے کو ہنستا کھیلتا پایا۔ آپ کی انگلی منہ میں تھی اور اس سے دودھ جاری تھا، لہٰذا اللہ کی قدرت اور مدد سے آپ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی۔ آپ کی والدہ روز اسی طرح موقع دیکھ کر ایک مرتبہ غار میں آتی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرتی۔ اللہ کی شان تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں ہی دوسرے بچوں کی نسبت اتنا بڑھتے جتنا دوسرے بچے ہفتوں میں بڑھتے ہیں، اور ایک ہفتے میں آپ کی نشوونما اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی مہینوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح 2 سال کا وقت گزر گیا
और आप चलने फिरने और बोलने लगे। आपकी वालिदा रोजाना आप अलैहिस्सलाम से मिलने आती और आपको अच्छी अच्छी बातें और इखलाक सिखाती। जब आपकी उम्र 7 साल की हुई तो आपके वालिद आज़र ने रात के वक्त गार से निकालकर मकान की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जो जानवर मिलता उसे देखकर आप अलैहिस्सलाम दरियाफ्त करते और आज़र कहते जाते, यह ऊँट है, यह गाय है, यह बकरी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यह सुनकर दिल में कहते, इन मखलूक़ात को पैदा करने वाला रब कौन है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुतों और सितारों की इबादत करते हुए देखा और आसमान में एक सितारा नजर आया तो उसे देखकर आप अलैहिस्सलाम ने बेसाख्ता फरमाए, यह मेरा रब है। आप उसे देखते रहे यहाँ तक कि वो गायब हो गया, और जब वो गायब हो गया तो आप कहने लगे, मैं गायब होने वाले को रब नहीं कहता। फिर थोड़ी देर बाद चांद तुलू हुआ, फिर सुबह होते ही सूरज का नूर नजर आया और सारे सितारे और चांद की रोशनी गायब हो गई। तो आप अलैहिस्सलाम फिर बोल उठे, यह मेरा रब है। मगर जब शाम हुई और यह भी गुरूब हो गया तो आप अलैहिस्सलाम के ज़हन मुबारक में यह ख्याल आया कि जो गुरूब हो जाए वो हरगिज़ रब नहीं हो सकता। यह सब चीज़ें तो ज़ाहिर व गायब होती रहती है, तो ज़रूरी है कि इनको ज़ाहिर और गायब करने वाला कोई और होगा, और वही परस्तिश के काबिल और खुदाई के लायक है। कुरान करीम में इस वाक़ये को यूँ बयान किया गया है, और हम इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो कामिल यकीन करने वालों में हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को भी बुत बनाते और उन्हें बुतों की पूजा करते देखा। चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से आप अलैहिस्सलाम को मनसफ़े नबूवत मिलने वाली थी, इसलिए अल्लाह ने आप पर ज़मीनों, आसमान, फूल, रंग, इंसान, हैवान कैसे पैदा हुए, उनको पैदा करने वाला कौन है, यह तमाम ख्यालात वाज़े कर दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुद्दतों तक अपने ख्याल को जाहिर न किया, और जब आज़र बुत बनाकर फ़रोख्त करने के लिए आप अलैहिस्सलाम को देता तो आप बाज़ार में बुलंद आवाज़ से फरमाते, लोगों आओ अपने खुदाओं को ख़रीद लो जो न किसी को नफ़ा पहुँचा सकते हैं और न कोई नुकसान। लोग यह सुनकर मुतअज्जुब होते और उनसे बुतों को कोई ना खरीदता। जब शाम होती तो आप नहर की तरफ जाते और बुतों की गर्दन पकड़कर डुबोते और कहते, पी ले पी ले। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में यह बात मशहूर होने लगी। शुरू में लोग आप अलैहिस्सलाम की बातों को भोलेपन का खेल समझते रहे। जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज किया तो आप एलानिया तौहीद और एक अल्लाह की इबादत की तालीम व तबलीग करने लगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत व तबलीग का आगाज़ किया तो सबसे पहले अपने वालिद आज़र को दीन की तरफ बुलाया। ऐ मेरे बाप, शैतान की इबादत ना करें, क्योंकि शैतान तो अल्लाह का नफरमान है। मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको रहमान की तरफ से कोई अजाब आ पकड़े। आप ऐसी चीज़ों की क्यों इबादत करते हैं जो न सुनती है, न देखती है और न आपके कुछ काम आ सकती है। इस तरह आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को तबलीग करने का हक अदा कर दिया। लेकिन आज़र की किस्मत में ईमान की दौलत नहीं थी, इसलिए आज़र ने कहा, ऐ इब्राहिम, तू मेरे माबूद से फिरा हुआ है। अगर तू बाज ना आया तो मेरे सामने से चला जा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करूँगा, बेशक वो बड़ा मेहरबान है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम दावत व तबलीग करते रहे, लोगों के बीच जाते और कहते, इबादत के लायक न नमरूद है और न यह लकड़ी और पत्थर के बुत, बस इबादत का मुस्तहक अल्लाह है जिसने सारी दुनिया को पैदा फरमाया। अलगर्ज आहिस्ता आहिस्ता जब यह खबर नमरूद तक पहुंची तो उसने दरबारियों से मालूम किया कि यह नौजवान कौन है, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के सामने पेश किया गया तो नमरूद ने पूछा, ऐ नौजवान, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है
जो लोगों को जिंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, यह तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने एक ऐसे मुजरिम को आज़ाद कर दिया जिसे फांसी होने वाली थी, और एक ऐसे शख्स को फांसी देने का हुक्म दिया जिसकी कोई सज़ा नहीं थी। फिर कहा, अब बताओ, मैं भी तो लोगों को जब चाहूँ मार सकता हूँ और ज़िंदगी बख्श सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू ताकत रखता है तो जिसे फांसी दिया है उसे ज़िंदा करके दिखा। मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुझ में ताकत है तो मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद यह सुनकर कोई जवाब न दे सका और शर्मिंदा हो गया। एक रिवायत है कि बाबिल के लोग जब ईद मनाने शहर से बाहर जा रहे थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं गए और उनके आने से पहले सारे बुतों को कुल्हाड़ा मारकर तोड़ दिया। बस एक बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब मुशरिकीन शहर से लौटे और अपने माबूदों को इस हालत में देखा तो शोर करने लगे। किसी ने कहा, वो नौजवान जिसका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उसी ने हमारे बुतों की यह हालत की है। वही हमारे बुतों की बुराई करता था। लिहाजा कौम के लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और दरियाफ्त किया, ऐ इब्राहीम, क्या हमारे बुतों के साथ यह हरकत तुमने की है? इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? उसी से पूछो। इस पर लोगों ने कहा, ऐ इब्राहीम, क्या तुम नहीं जानते, यह बोल नहीं सकते? इस पर आप अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ लोगों, तुम ऐसी चीज़ को अपना रब मानते हो जो अपनी हिफाजत तक नहीं कर सकता। वो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेगा? तुम उसकी पूजा करते हो जिसे तुम खुद तराशते हो, और उस रब को भूल बैठे हो जिसने तुम्हें बनाया और सारे जहां को पैदा फरमाया। आपकी बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए। जब यह खबर नमरूद तक पहुंची तो उसे खतरा महसूस हुआ, लिहाजा उसने दरबार बुलाई और सजा का ऐलान किया कि इब्राहीम ने हमारे खुदाओं को तोड़ा है, कल यह हमारे पूरे इबादत खानों को तबाह कर देगा। लिहाजा बहुत जल्द सबने फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला दिया जाए। नमरूद के हुक्म पर फौरन तैयारी शुरू की गई। इधर बुत खाने के पुजारियों ने भी ऐलान करा दिया कि जो सबसे ज़्यादा ईंधन जमा करेगा उसकी मुरादें पूरी होगी। लिहाजा आसपास के इलाकों से लोग ईंधन जमा करने लगे और एक मुकर्ररा दिन में उसमें आग जला दी गई। जब आग खूब भड़क गई तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त यह दुआ पढ़ी, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। चुनांचा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई, और आग ने न इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और न जिस्म के किसी हिस्से को। यह देखकर लोग हैरान रह गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आए तो इतना बड़ा मुअज्जिज़ा देखकर भी लोग ईमान ना लाए। मुफस्सरीन लिखते हैं कि आग से निजात के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन की दावत दी और खुदा की तरफ बुलाया और अल्लाह के गज़ब से भी डराया। मगर नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा, और एक दिन बेशुमार लश्कर लेकर निकला। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। अल्लाह ताला ने बेशुमार मच्छरों को भेजा। वो इतने तादाद में थे कि आसमान ढक गए और अंधेरा छा गया, और वो मच्छर नमरूद के लश्कर पर हमला आवर हुए और उनके सर और नाक में घुस गए और सब के सब हलाक हो गए। नमरूद भागकर महल वापस आ गया, लेकिन एक मच्छर नमरूद के नाक के जरिया दिमाग में घुस गया और उसका मगज खाने लगा। वो इस कदर बेचैन हुआ कि चंद सिपाहियों को मुकर्रर किया कि वो जूतों और डंडों से उसके सर पर मारे, और इसी हालत में वो 40 साल रहा, मगर वो ईमान ना लाया और कुफ्र की हालत में मारा गया। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की कहानी ईमान की ताकत और अल्लाह के मंसूबे की अहमियत की मिसाल है।